बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद वसीम अनवर है। मेरा ताल्लुक लाहौर पाकिस्तान से है। आज एक बार फिर हम एक बहुत एक्साइटिंग शो के साथ हाजिर हैं, 3 लैंग्वेजेस विद वसीम। आज के शो में हम देखेंगे हमारी आज की 3 लैंग्वेजेस कौन सी है, होस्ट कौन से हैं और गेस्ट कौन से हैं। आपको पता है हमारी हर शो में जो लैंग्वेजेस और होस्ट और गेस्ट सब सरप्राइज होते हैं। तो आज के शो में हम इसको एंजॉय करेंगे। Hello everyone, my name is Mohammad Wasim Anwar. I am from Lahore, Pakistan. Today we are yet back again with an exciting show, 3 Languages with Wasim. The purpose of this show remove the language barrier, unity. The founder who speak different languages in different platform, who are here in one platform. So I would like to call our first host, Mr. Rehan Sarkar from India. Hello Rehan ji, how are you? Welcome to my show. Hello, sir. I am fine. Myself, Rehan Sarkar from West Bengal, India, and I representing today the Hindi language. Thank you very Over much. to host. Thank you very much, Rehan ji. Our next host is she's also from India. I would like to call Sampa Sarkar. Hello Sampa ji, how are you? Thank you, Wasim ji. I am Sampa Sarkar, West Bengal, India. Today I representing the Bengali language. Thank you Thank you. Thank you very much, Over Sampa to ji. Wasim ji. Yeah, thank you very much. And our next host is he's also from India, Mr. Kundan from India. Hello Kundan ji, how are you? Welcome to my show. I am very fine, sir. Thank you, sir. I am Kondan Krishnan from Bihar, India, representing today Bhojpuri language. Over to Wasim, sir. Thank you very much. So today we have decided 3 languages: Hindi, Bengali, and Bhojpuri. So let's start the show. I request the all hosts, please start this show. Now stage is yours, and introduce your guest and ask question one by one. So please, I would like to call Mr. Rehan Sarkar. Let's start the show. Thank you, sir. Thank you very much. आज की हमारी इस हिंदी लैंग्वेज शो में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और आज की हमारी गेस्ट है मिस्टर गौतम विश्वास सर, इंडिया से। सर, आप मंच पर आइए और पहले आपका इंट्रोडक्शन रखिए और ऑन पैसिव के अलावा आप प्रोफेशन में क्या करते हैं। आज हमारी सभी पार्टिसिपेंट के सामने आपकी प्रोफेशन और आपकी परिचय बताइए। वेलकम सर। गुड इवनिंग रेहन सर। मैं गौतम विश्वास इंदौर एमपी इंडिया से बोल रहा हूँ और मैंने 30 जनवरी 2021 मैंने फाउंडरशिप लिया है। और मेरे जो पीर भाई है, गुरु भाई महानंदो जी से, और मैं पेशा से एक चिकित्सक हूँ और मैं इंदौर में ही रहता हूँ। यस, ओवर टू संपा सरकार मैम। Thank you, Rehan ji. নমস্কার, আমি শম্পা সরকার, ওয়েস্ট বেঙ্গল, ইন্ডিয়া। আজকে আমাদের বাংলা ওয়েবিনারে আমাদের স্পেশাল গেস্ট মিস্টার নির্মল কুমার, ইন্ডিয়া। তো মিস্টার নির্মল কুমার, ইন্ডিয়া, ওয়েলকাম। প্লিজ বলুন আপনি কোথা থেকে এসেছেন, নিজের পরিচয় দিন এবং আপনি অনপসিবল কবে থেকে এসেছেন আমাদের কাছে বলুন। থ্যাংক ইউ। Thank you, ma'am. Good evening, every respected founders. আমি ফাউন্ডার অফ অনপ্যাসিভ ডক্টর নির্মল কুমার রায়, এমপি ইন্ডিয়া থেকে বলছি। আমি পেশাতে একজন চিকিৎসক এবং নেশাতে একজন অনপ্যাসিভিয়ান। 31 অক্টোবর 2020 আমি এই সুন্দর প্ল্যাটফর্মটা পাই। আমার শ্রদ্ধেয় স্পন্সর মিস্টার মণিমোহন রায়,
ওনার মাধ্যমে আমি এই সুন্দর অফারটা পাই এবং সেই থেকে যখন আমি বুঝেছি এটা একটা বিশ্বব্যাপী প্ল্যাটফর্ম, যে প্ল্যাটফর্মের সন্ধান আমি সারা জীবন করে এসেছি, আমি আমার সম্পূর্ণ একটা ইচ্ছা ছিল যে আমি এমন একটা প্ল্যাটফর্ম পাবো যে প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আমার মাধ্যমে আমি অসংখ্য মানুষকে সুন্দরভাবে জীবনযাপন করার একটা রাস্তা আমার মাধ্যমে আমি দিতে পারবো। সেই মন পছন্দ প্ল্যাটফর্মে অনপ্যাসিভ আমি পেয়েছি, আর সেই দিন থেকে তন মন ধন সমস্ত কিছু দিয়েই আমি এই অনপ্যাসিভের সঙ্গে, অনপ্যাসিভ আমার নেশা, অনপ্যাসিভ আমার পেশা, সেই হিসাবে আমি অনপ্যাসিভকে বেছে নিয়েছি। ওভার টু শম্পা ম্যাম। থ্যাংক ইউ অনেক অনেক ধন্যবাদ, খুব সুন্দর বলেছেন, অনেক অনেক ধন্যবাদ। ওভার টু কুন্দন कृष्णन जी। थैंक यू शंपा मैम जी। और आज हमारे गेस्ट हवन अनूप प्रसाद सर। तो हम अनूप प्रसाद सर से पूछल चाहते हैं कि रउआ ऑन पैसिव करे के पहले का करत रहली और ओकर बाद ऑन पैसिव में आके अपन रउआ परिचय दे कि और पूरा डिटेल से बतावे के कोशिश करब, सब जन हम लोग सुनब और रउआ दिल से बताई ताकि हम सब बढ़िया से सुन सकीना। तो ओवर टू अनूप सर जी, रउआ आई और ई प्लेटफॉर्म पे बतावे के कोशिश करी। धन्यवाद कुंदन सर जी। हमार नाम बा अनूप प्रसाद, गांव बा बैरिया, जिला औरंगाबाद, बिहार के रहे वाला ही हम। हमारा अपलाइन तो कुंदन सर जी है और हम 8 अगस्त 2021 के ऑन पैसिव फाउंडर में ज्वाइन ले ले हैं। हम एकरा पहले करत रही, एक शिक्षक हैं, उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक हैं, वही में पढ़ावत थी, अभी भी उसमें कार्यरत थी हम। तो हमार ऑन पैसिव ज्वाइन कैला के बाद हमरा के बहुत बड़ा एक भावना मिलल है मानव कल्याण खातिर। हमरा के मानव कल्याण करे खातिर जे ऑन पैसिव के ग्रेट सीईओ हथ हमारे श्री एस मुफारे सर, उनका के कोटि कोटि धन्यवाद बा। हम ऑन पैसिव के प्राउड फाउंडर हैं और आवे वाला समय में हम पूरे मानव जाति का कल्याण करब। ओवर टू कुंदन सर। धन्यवाद। तो ओवर टू वसीम सर जी, रहुआ अगला राउंड। थैंक यू वेरी मच कुंदन जी एंड ओवर टू रेहान जी। Yes, thank you कुंदन कृष्णन जी एंड वासिम अनवर जी। हमारी गेस्ट से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर आप हमारी कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ मिस्टर एस मुफारिस सर की विजन और मिशन, इन दोनों चीजों को कैसे देखते हैं, आप प्लीज हमारे सामने एक्सप्लेन कीजिए। गुड इवनिंग रेहान जी अगेन। आपने जो सवाल किया है यार सर के मिशन और विजन, इसके बारे में मैं अगर बोलना चाहूंगा तो पूरी रात हो जाएगी। मेरे ख्याल से मुझे शॉर्ट एंड स्वीट में मुझे बात करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि यार सर का जो मिशन और विजन है वो है मानवता के प्लेटफॉर्म है, और जो है इंटरनेट की जो दुनिया में जो केवल 3% लोग पूरे दुनिया के 97% लोगों की पैसा अपने जेब में रख के उसके ऊपर ऐश कर रहे हैं। और ऐश सर का जो मिशन और विजन है, उस 3% लोगों की पैसा जो है वो 97% लोगों के बीच में समबंटन करना है और दुनिया से करप्शन को दूर करना है। दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक की युग में, डिजिटल प्लेटफॉर्म में और इंटरनेट की युग में सबसे ज्यादा करप्शन होता है, और इस करप्शन को खत्म करने के लिए हमारा यार सर जो एआई टेक्नोलॉजी, रोबोटिक सिस्टम, मशीन लर्निंग और जो एक सबसे बड़ा चीज है वो हमारे बीच में है ब्लॉकचेन सिस्टम। ये सिस्टम के साथ में डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी, मदर ऑफ ऑल बिजनेस, एक ही छात्र के नीचे हमारा दुनिया भर की जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है
वो लेके हमारा यश सर आ रहे हैं। इससे जो है सबसे ज्यादा जो है करप्शन खत्म होगा। इससे सबसे जो ज्यादा है कि हमारा दुनिया में जो लोग अनएथिकल काम कर रहे हैं उस चीजों को हम पकड़ पाएंगे। और जो दुनिया के बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े करप्शन करके इधर उधर हस्तांतर करते, उन चीजों को हम पकड़ पाएंगे इन सब टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये दुनिया में ऐसा चीज है कि एक ही जगह में मिलने से सभी लोग जो करप्शन करने वाली जो चीज है उन लोगों को छोड़ के हमारी तरफ आएंगे और हम इस दुनिया को एक नया और सच एक प्लेटफॉर्म दे पाएंगे। तो मैं इससे ज्यादा और आपके सवाल के जवाब में और ज्यादा मैं और अगर आप बोलते हैं तो मैं और भी बोल सकता हूं, पर मैं इतना बोलूंगा कि हम दुनिया को करप्शन से मुक्त करने के लिए हम आए हैं और यही यश सर के मिशन एंड विजन है और मानवता के प्लेटफॉर्म है। उनका पहला जो मानवता के प्लेटफॉर्म है वो है लोगों को मदद करना। तो जो यश सर के मिशन है उसको हम भी हमारे तरफ लेंगे। यश सर ने एक बात कहा है कि मैं अकेला हर व्यक्ति के तो जीवन सुधार नहीं सकता, हर व्यक्ति को तो मैं आमिर नहीं बना सकता, हर व्यक्ति को मैं बहुत कुछ नहीं दे सकता हूँ, पर कुछ लोगों के तो ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म दे सकता हूँ, मदद कर सकता हूँ। तो मैं भी उस चीज को लेता हूँ कि मैं तो हर व्यक्ति को कुछ हर चीज को नहीं दे सकता, पर मेरे पास जितना जो भी कुछ आएंगे उसके माध्यम से कुछ लोगों को तो मैं जरूर मदद करूंगा। मैं इतना कहना चाहूंगा। बस ओवर टू रेहन सर। थैंक यू गौतम सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से आपकी एस सर की जो विजन और मिशन है उसके बारे में अपने विचार को रखा। बहुत ही अच्छा लगा सुनकर। और ओवर टू नेक्स्ट होस्ट संपत सरकार मैम। This meeting is being recorded. Thank you रेहान जी। तो हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर निर्मल रॉय, প্লিজ আপনি বলুন আমাদের অনপসিক আগত ভবিষ্যৎ আগত প্রজন্মের জন্য কেমন কি আনতে চলেছে, আপনার কি মনে হয় সে বিষয়ে যদি আপনি কিছু বলেন। মিস্টার নির্মল বিশ্বাস, নির্মল রয়, সরি। থ্যাংক ইউ ম্যাম। once again গুড ইভিনিং। আপনি যে প্রশ্ন করেছেন যে ভবিষ্যতে আমাদের অনপেসিভ কি হতে চলেছে বা আমাদের কি দিতে চলেছে, দেখুন আমি যতটুকু বুঝেছি আমি যদি সেইভাবেই বলি, যেমন আমি অনপেসিভে এসেছিলাম শুধুমাত্র দেখেছিলাম এআই টেকনোলজি কি, এই এআই টেকনোলজি ফিউচার আমাদের এআই টেকনোলজি কি করে দেবে, এখন বর্তমান বাজারে যে এআই টেকনোলজি আছে সেটা আমাদেরকে কি করে দিচ্ছে। আমি যদি এআই টেকনোলজিকে ডিভাইডেড করি তাহলে এটা তিন ভাগে আমি ভাগ করতে পারি, একটা হচ্ছে ন্যানো, একটা হচ্ছে জেনারেল, একটা হচ্ছে সুপার। তো আমাদের অনপেসিভ আমরা যে টেকনোলজিটা নিয়ে আসছি সেটা হচ্ছে সুপার এআই টেকনোলজি আসছে ফিউচার। এই সুপার এআই টেকনোলজি ছাড়া পৃথিবীতে অন্য কোনো টেকনোলজি কোনো মূল্যায়ন থাকবে কিনা বলা অসম্ভব। অর্থাৎ সমস্ত ডিপার্টে এআই থেকেই পরিচালিত হবে, এআই ছাড়া কোনো কিছু সম্ভব হবে না। এবং এই এআই ছাড়া কোনো কিছু সম্ভব এই জন্য হবে না, সারা পৃথিবীর সরকার চেষ্টা করে আজ পর্যন্ত করাপশনকে শেষ করতে পারেনি। একমাত্রই করাপশনকে শেষ করতে পারে সেটা হচ্ছে টেকনোলজি। কেমন, যদি একটা উদাহরণ দিই তাহলে আমরা সাধারণত যদি একটা ইমেল তৈরি করি, একটা ইমেলের যদি সামান্য একটা বিন্দু যেটাকে আমরা ডট বলি, সেই ডটটা যদি আমরা না দেই তাহলে ইমেলটা ওপেন হয় না, কার্যকারী হয় না। সেখানে কোনো ক্ষমা নেই, সেখানে কোনো অন্যায় স্বীকার করলে কোনো কাজ হবে না, সেখানে ডটটা দিতেই হবে, তারপরে সে ওপেন হবে। এটাই হচ্ছে টেকনোলজি। তো টেকনোলজি ছাড়া আসছে যুগ কোনোভাবেই সাকসেস হতে পারবে না। আর সেই টেকনোলজির মাধ্যমে সারা পৃথিবীর মানুষ একটা সঠিক জায়গায় পৌঁছে যেতে পারবে। তাই আমাদের শ্রদ্ধেয় মিস্টার সিও স্যার উনি এই মিশন এবং ভিশনটাকে সামনে রেখেছেন। একটাই মাত্র পথ, সেটা হচ্ছে সমস্ত পৃথিবীর মানুষের ইকোনমিক্যাল সিস্টেমকে বরাবর করে দেয়া এবং পৃথিবী থেকে এই কারেকশনকে ক্রাকশন করে একটা সুন্দর পৃথিবীকে তৈরি করা। সেই মিশন এবং ভিশন নিয়ে উনি এসেছেন এবং ইন্টার ফিউচার বুক আমরা সেটাই দেখতে পাচ্ছি। থ্যাংক ইউ ম্যাম। থ্যাংক ইউ, খুব সুন্দর বলেছেন, অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। তো ওভার টু মিস্টার কুন্দন কৃষ্ণন।
थैंक यू संपा मैम। और हम अनूप सर से पूछल चाहते हैं कि ऑन पैसिव के आवे से रुआ समाज में का बदलाव देखल चाह थी रुआ अपनी नजर से, तो ये रुआ हमनी के बतावे के कोशिश करें कि ऑन पैसिव आई तो समाज में का बदलाव हो सकला। तो ओवर टू अनूप सर। थैंक यू कुंदन सर। अपने प्रश्न कहले बानी कि समाज में बदलाव का हो करे के चाहिए, तो हमार कुंदन सर हमारे एस सर के यही विजन बा कि पूरे मानव जाति के कल्याण होवे। पूरे मानव जाति के कल्याण करे खातिर वो ये पूरा प्लेटफॉर्म बनौले बड़न। और हम सभी फाउंडर से निवेदन बार बार करब कि मानव जाति के कल्याण खातिर आसपास के जे भी मानव जाति होखत सबके हिफाजत करस, सबके बराबर दृष्टि से देखे के बा और सबके कल्याण करे के बा। उनका चाहे आर्थिक हो या सामाजिक हो, कैसा हो स्थिति के में वो रहत, उनका के कल्याण करे के बा। हर हालत में उनका देखे के बा। तो ओवर टू कुंदन सर। ओवर टू कुंदन सर जी। धन्यवाद अनूप सर जी। बहुत अच्छा बोलनी कि सबके एक समान से देखल जाए तबे मानव के कल्याण हुई। एकर रउआ कोटि कोटि धन्यवाद देवत है कि रउआ सही बतैनी और सचमुच वो तबे विकास हुई मानव के एक समान से देखब, एक समान नजर ले। तो ओवर टू रेहान सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हमारी गेस्ट गौतम विश्वास सर से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर हम बहुत ही जल्द ऑन पैसिव को इस दुनिया में जो रेवोल्यूशन ऑन पैसिव लाने जा रहे हैं वो रेवोल्यूशन क्रिएट होने वाला है कुछ ही दिनों के अंदर। तो जब ऑन पैसिव पूरी तरीके से इस धरती पे आ जाएगा, यानी लॉन्चिंग हो जाएगा ऑन पैसिव का, उसके बाद हमारे सबकी वॉलेट में एप्पल गिरना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपका इस ह्यूमैनिटी के लिए, इस पूरे मानव जात के लिए क्या क्या करने का इरादा है आपका? प्लीज शॉर्ट तरीके से आप हमारे सामने आप आज एक्सप्लेन करें। ओवर टू सर। अगेन गुड इवनिंग सर। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में आने के बाद ये हमारा भी एक मिशन विशन होना चाहिए। और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि एक छोटी सी शब्द ये है कि यूनिकन। हमारा कंपनी बाय बॉर्न ही यूनिकन हो रहा है और बहुत जल्द वो सुपर यूनिकन होगा, क्योंकि हम एक ऐसी प्लेटफॉर्म में है जहाँ पे हमारे पास सब कुछ है। हम सेल्फ डेवलपमेंट है, मतलब हम किसी के कई चीज उधार नहीं लेना, हमारा कंपनी फुलफिल है। ये तो हमारी कंपनी के बारे में हो गया है और बहुत जल्द हम सुपर यूनिकॉर्न भी होंगे। उसके बाद आपने बोला है कि जब लॉन्चिंग हो जाएगा उसके बाद हमको क्या करना है, मेरा मिशन क्या है। देखिए सर, मैं जिस समाज से आता हूँ, मैं जिस धर्म से कास्ट बिलोंग करता हूँ और मैं आदर्श मानता हूँ, वो हमारे श्री हरि गुरुचार ठाकुर। और मैं गुरुचार ठाकुर का शिक्षा आंदोलन जो था उससे जो है ना, उन्होंने 3952 स्कूल बनाए थे और जो समाज के पिछड़े लोग उनको जो है ना उन्होंने पढ़ने की सुविधा दिया है। वो क्या है कि दिन में जो गौशाला है, जो गाय रखने की जो घर होता है, उसमें दिन में स्कूल बनाते थे और रात को गाय रहते थे। मतलब उन्होंने शिक्षा की मिशन को इस तरह से उन्होंने टेकअप किया। मतलब उन्होंने सबसे ज्यादा पहले जो जोर दिया वो है शिक्षा पे, क्योंकि एक व्यक्ति तभी डेवलपमेंट कर सकता है अगर उसके बाद एडुकेशन हो। तो सबसे पहला जो मिशन और विजन है वो जो, जैसे याश सर ने भी पहला जो प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया था 12/2/2021 को, जो हमारा पहला प्रोडक्ट वो एकेडमी था। याश सर का भी मिशन विजन वही था कि शिक्षा यहाँ से सबसे पहला जरूरी है। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ से जब हम अर्निंग करेंगे, हमारे पास कुछ पर्याप्त परिमाण में पैसा आएगा, तो मैं शिक्षा के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दूंगा कि जहाँ पे प्राइमरी स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल है
उसको अगर वहाँ के बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहा है तो उनको कैसे हायर एजुकेशन दिया जाए, कैसे शिक्षा दी जाए, कैसे इंटरनेट शिक्षा दी जाए, क्योंकि दुनिया में 850 करोड़ इंसान के अंदर 550 करोड़ इंसान आज के दिन में इंटरनेट यूज करते, तो इंटरनेट की यूज और इंटरनेट में कैसे करप्शन होता है, उन सब चीजों की एजुकेशन, कंप्यूटराइज शिक्षा, ये सब चीजों में मैं सबसे ज्यादा पहले ध्यान दूंगा, क्योंकि यही मेरा मिशन भी है, विजन भी है। और उसके बाद जो है ना, एक दूसरी चीज और है कि मैं ये नैतिक शिक्षा देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आज के दिन में हम देखा है कि जगह जगह में यतीम खाना है, जहां अपने बच्चे पैसा कमा के अपने माँ बाप को बोझ समझ लेते हैं। तो एक माँ 10 बच्चे को पाल सकते, पर 10 बच्चे मिलके एक माँ को पाल नहीं सकते। तो मैं वो शिक्षा देना चाहूंगा कि माँ बाप का भी बोझ नहीं होता है, आप कैसे भी करके माँ बाप को घर से बाहर मत करिएगा। तो ये सब मिशन मेरा है, जो याश सर का भी है, जैसे याश सर भी उनके माँ को बहुत प्यार करते हैं, तो मैं भी ये कहना चाहूंगा दुनिया में एक भी यतीम खाना नहीं होना चाहिए, ये शिक्षा के लिए मैं बहुत ज्यादा जोर दूंगा। और दूसरा है कि जो आज के दिन में छोटे छोटे टेक्नोलॉजी के माध्यम से इनकम करना, क्योंकि नौकरी तो आज के दिन में है ही नहीं, तो किसी भी तरह के जो अपन छोटे छोटे टेक्नोलॉजी, छोटे छोटे कारखाना, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट ऐसे करके ने हम इंटरनेट के माध्यम से भी जुड़ के उसको वर्ल्ड की बाजार में ले जाके उनको स्वावलंबी करना है, उनको अर्थवान करना है। और जो मोटिव मिशन विशन मेरा है, ये शिक्षा भी साथ में उनको देना है, ये सबसे बड़ी चीज है। और सबसे बड़ी एक चीज जो मेरा मिशन और विजन है, मैं जातिवाद को नहीं मानता हूं, जैसे याश सर ने नहीं माना, क्योंकि उन्होंने धौला गोरा काला, कोई छोटे बड़े किसी भी तरह के किसी भी कोई भेदभाव नहीं रखा। तो मैं भी उस मिशन को फॉलो करूंगा, ना मैं जात पात कोई किसी प्रकार की कोई जिससे प्रभावित हो, इस तरह की जो मिशन विशन है उसको मैं फॉलो करूंगा। और मैं इसी को मेरा मोटिव मिशन विशन बना के मैं याश सर के पदचिन्हों में मैं चलना चाहूंगा। और आगे चल के उनके और भी मिशन विशन हमें मिलता रहेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल तो हम 95% हम जानते नहीं ऑनरशिप के बारे में, केवल 5% जानते हैं। तो 5% में मैं इतना सब कुछ करना चाहता हूं, और उसके बाद जब और कुछ जान जाएंगे तो हम और भी व्यापक बड़े तरह की कुछ भी करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर, मुझे आज इस प्लेटफॉर्म में बुलाने के लिए और मुझे मौका देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच गौतम विश्वास सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से आपकी विजन और मिशन के बारे में बताया। और ऑन पैसिव लॉन्चिंग के बाद जब एप्पल बनना शुरू हो जाएगा तो उस एप्पल से आप क्या करेंगे, हमें कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही गए होंगे। तो थैंक यू वेरी मच सर। हम अभी ओवर करते हैं हमारी संपा सरकार मैम को। ओवर टू मैम। थैंक यू रेहान जी, अनेक अनेक धन्यवाद। আমাদের স্পেশাল গেস্ট মিস্টার নির্মল রয়, আপনি আসুন। আপনি এটুকু নিশ্চয়ই শুনেছেন যে অনপাসিভ ইজ ম্যাসিভ, তো ম্যাসিভ ইনকামও আসবে আমাদের, এটা আমরা জানতে পেরেছি, শুনতে পেরেছি। তো ম্যাসিভ ইনকাম আসলে অবশ্যই আমি আমার নিজের খেয়েও পরের খাওয়ানো যাবে, এটা আমরা শুনেছি। তো আপনার প্ল্যান কি আছে এ বিষয়ে? আপনি কি সমাজের জন্য কিছু করতে চান? আপনার মিশন কি আছে? থ্যাংক ইউ ম্যাম, অনস এগেইন ইভিনিং। সব থেকে প্রথমে আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে, আমি যে একজন প্র্যাকটিশনার, আমি যে একজন ডাক্তার, আমার ছোটবেলার স্বপ্ন ছিল না আমি একজন ডাক্তার হব, কিন্তু আমি যে ডাক্তার হয়েছি সেটা হচ্ছে আমার বাবার স্বপ্ন। আমার বাবা বলেছিলেন, জীবনে মানুষের জন্ম নিয়ে যদি মানুষের সেবা করা না যায় তার থেকে অপরাধ আর হতে পারে না। তো আমি তোকে বলছি তুই ডাক্তারি লাইনে যা, তাহলে যথেষ্ট মানুষের সেবা করার সুযোগ পাবি। বাবার ইচ্ছাতে আমি ডাক্তার হয়েছিলাম, কিন্তু আমার যখন আমি ডাক্তার হই তখন আমার ভিতরে একটা নূতন স্বপ্ন জাগে, যে আমি ডাক্তার হয়েছি, ছোট একটা এরিয়ার কিছু মানুষ আমাকে জানে, ছোট একটা এরিয়ার কিছু মানুষকে আমি সেবা করতে পারছি, কিন্তু ঈশ্বর আমাকে যদি এমন একটা প্ল্যাটফর্ম তুমি দিতে যে সারা বিশ্বের মানুষ আমাকে জানুক এবং সারা বিশ্বের মানুষকে আমি সেই সেবাটা দিতে পারি, সেই মন চায় আমার এই অনপেসিভ
ঈশ্বর আমাকে সেই সুন্দর বিশ্বব্যাপী একটা আধ্যাত্মিক প্ল্যাটফর্ম, হলেও বিজনেস প্ল্যাটফর্ম, কিন্তু আমি মনে করি এর থেকে বড় আধ্যাত্মিক প্ল্যাটফর্ম আর হতে পারে না। এখানে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে শুধুমাত্র আমরা মানুষ, তাই মানবতাই আমাদের ধর্ম, সেটাকেই এখানে রিসার্চ করা হয়েছে, সেটাকেই সবাইকে বোঝানোর জন্য চেষ্টা করা হয়েছে, না টাকা। টাকার কথা কোনো সময় স্যার বলেননি। শুধু উনি বলেছেন যে হিউম্যানিটির উপরে কাজ করতে। সেই হিউম্যানিটির উপরে যদি আমরা কাজ করি, সেটা হচ্ছে মানব সেবা। সর্বোপরি আমি খুব ছোট্ট ভাবে বলে আমার বক্তব্য আমি শেষ করবো। সেটা হচ্ছে আমি একটা কথা জানি, সেটা হচ্ছে আমি আমার নিজের জন্য আমি যা কিছু করি না কেন সেটা আমার সঙ্গেই চলে যাবে, কিন্তু আমি যদি আমাকে মানুষের সেবায় বিলিয়ে দিতে পারি, আমি যদি মানুষের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে পারি, আমি যদি মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারি, সেটা জন্মান্তর সেটা থেকে যাবে। তাই মানুষের ধর্ম মানবতা, সেটাকেই লক্ষ্য রেখে আমরা আগে বাড়বো এবং আমার যেটুকু প্রয়োজন তার অতিরিক্ত আমি যা পাবো সেটা মানব সেবার জন্য আমি উৎসর্গ করে যাব। ওভার টু সম্ভব। থ্যাংক ইউ, খুব সুন্দর বলেছেন মিস্টার নির্মল রয়। তো so get ready for the greatest financial support in our life actually. So thank you Mr. Nirmal Rai. Over to Mr. Kundan Krishnan. बहुत बहुत धन्यवाद करत हैं संपा मैम। और हमारा स्पेशल गेस्ट हम अनूप सर से जरूर पूछल चाहब ये अंतिम क्वेश्चन, और बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछल चाहत हैं कि रउआ ये बताई कि पहले लॉन्च होला के बाद जब राउरा एप्पल मिले लागी तो रउआ सबसे पहले कहाँ घूमल पसंद करब, और रउआ समाज के लिए व्यक्तिगत रूप से का करेला सोचने हैं, हम सब के जरूर बताएं ताकि हम सब राउर विजन समझ सकी और जान सकी। तो रउआ आई और स्वागत है, इस क्वेश्चन के जवाब सुने खातिर हमनी बेचैन हैं, तो वेलकम है अनूप सर। धन्यवाद कुंदन सर जी, अपने प्रश्न अच्छा केले बानी। सबसे पहले तो हमन लोगन के मानो भाई है और जात पात के करो विदाई मानो भाई। जब हमरा के एप्पल ऐबे करी तो जब सब मानो भाई हमनी बानी ही, तो सभी मानव के कल्याण करे खातिर हमरा जे करे गुजारे परत सब करब। हाँ, लेकिन ओकरो में बा कि मान लेली कि कोई गरीब व्यक्ति है, उनका बेटी के शादी नइखे होवत तो उनका हम सहयोग कर देब। कोई ऐसा आदमी बड़े जिनका हॉस्पिटल के खर्चा न जुमत है तो उनका भी हम खर्चा जुटा देब ताकि उनका कल्याण हो जाए। तो ये सभी जो है, और मान ली कि केकरो गरीब लड़का बा, कोई गरीब आदमी बा और लड़का उनका रह के खूब होनहार बा, बढ़िया ओकरा पढ़े लिखे के कैपेसिटी बा, लेकिन ओकरा पास पैसे नहीं खे, तो वो हालत में ओकरा भी जहां तक होए वहां तक पढ़ाए, ओकरा शिक्षा दिलवावे के प्रयास करब हम, और ताकि शिक्षा देकर के वो अपना पैर पर खड़ा हो सके, इतना खड़ा हो सके कि वो भी मानव जाति के कल्याण करे खातिर सोचे और समझे। तो एकरा अलावे भी और हम कर सके ही, जैसे हमरा के आसपास में बहुत ऐसन गरीब बाड़न जेकरा के न कपड़ा जुटत बा, न मकान बा, न उनका खर्ची जुटत बा, खाना खाए के मोहताज बड़े वो। तो प्रयास हम करब कि उनका या उनका आसपास में जितना भी है सबके खाना की आपूर्ति करब। जैसे मनुष्य के मूलभूत सिद्धांत, मूलभूत आवश्यकता है भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा और आवास। तो ये सभी के हमने के सभी फाउंडर के, ऑन पैसिव के जितना भी फाउंडर है, सभी के गारंटी लेवे के पड़ी, पक्का गारंटी लेवे के पड़ी कि आसपास के कोई भी आदमी इस तरह के तकलीफ में न जूझ रखस। तो ई हालत में हम सबके कल्याण करब, और सबके कल्याण करे खातिर ही ऑन पैसिव आयल बा, यही ओकर विजन बा ऑन पैसिव के,
सबके कल्याण करे खातिर। ऐसे हम पूरे मानव जाति के कल्याण करब, सभी तरह के कष्ट के दूर करे के प्रयास करे के ही ऑन पैसिव बनल बा। ऐसे ओवर टू कुंदन सर। बहुत बहुत धन्यवाद करत ही अनूप सर, बहुत बढ़िया जवाब देली, निमन जवाब देली रहुआ, और बहुत नीक लागल राउर बात सुन के, हम सब खुश होइनी बिल्कुल। और धन्यवाद बता धन्यवाद सर। देनी, रउआ बता देनी कि हम मानव के सिर्फ सब मूलभूत आवश्यकता शिक्षा होई, मेडिकल होई, एजुकेशन होई, मतलब सब क्षेत्र में रउआ जे सहयोग करे के परण करने हैं। बहुत बहुत दिल से खुश होइनी और बहुत दिल से हम दुआ करत हैं कि हम सब के सपना पूरा होई, ताकि हम सब ऐसा इंसान के महान इंसान के पीछे काम करत हैं जेकर नाम है ऐश मुफरा। तो उनका भी हम इस मंच के माध्यम से कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और दिल से नमस्कार करत हैं। और यही नमस्कार के साथ हम आज ही इस वाणी के समाप्त करत हैं और हम ओवर टू वसीम सर जी के ये माइक हम देवत हैं। तो आई वसीम सर जी और रउआ माइक संभाली। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। Thank you very much. Wonderful, wonderful, excellent show. And although we are not understanding the different languages, but emotions are same. So I think this is the beauty of this show. We are together in a one platform. आज का जो शो था बहुत एक्साइटिंग था, और आपको पता है जब भी ये शो स्टार्ट होता है हम लैंग्वेजेस के बारे में हमें कंफर्म नहीं होता। हमारे लोग यहाँ पर फाउंडर्स यहाँ पर ज्वाइन करते हैं और हमें बताते हैं हम कौन कौन सी लैंग्वेज बात कर सकते हैं। हम उन्हीं में से होस्ट लैंग्वेजेस और गेस्ट चूज कर लेते हैं। तो आज अभी मैं ये बेशक मुझे बंगाली लैंग्वेज नहीं आती, भोजपुरी नहीं आती, बट कुछ वर्ड्स हम समझ लेते हैं कि फिर ये कि क्या बात हो रही है। और जिस तरह गौतम जी ने बात की, अनूप जी ने बात की, निर्मल जी ने बात की, अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट उनका विजन और उनकी बातें सेम ही थी। उन्होंने यतीम खाने की बात की और ऐसी चीज के बारे में बात की कि लोगों की, बच्चों की तरबियत के बारे में बात की कि वो एक माँ को नहीं पाल सकते, लेकिन एक माँ 10 बच्चों को पाल लेती है, लेकिन लोग अपने माँ बाप को नहीं पाल सकते। और ये हमारा एक कड़वा सच है। और अगर आप अगर गौर करें, हम मिस्टर आयश मुफारे एक विजन के साथ उन्होंने स्टार्ट किया है, लेकिन ये कि वो लोगों की तरबियत पर भी जोर दे रहे हैं। आपने कभी कोई ऐसा बिजनेस देखा जहां पर लोगों में पॉजिटिविटी आई हो, पॉजिटिव वाइब्स आई हो, फैमिली एनवायरनमेंट पैदा हुआ हो? तो ये उनका कमाल है कि आज हम सब एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठे हैं, बगैर किसी मजहब के, बगैर किसी कलर के, हम एक जगह पर हैं। यहाँ पर हर तरह के, यानी पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आए इस शो में, और किसी ने किसी के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन उनका मकसद एक ही है, ऑन पैसिव। और अगर आपको मैं बात बताऊं, जैसे कि आपने कहा ऐसा होना चाहिए कि बच्चों की तरबियत की बात की, तो ऐश मुफारे बहुत सारी प्रोडक्ट्स में भी ये बात कर रहे हैं। जैसा कि उन्होंने एक उनकी प्रोडक्ट है ओ एजुकेशन की, उन्होंने बात की, नाम लिया था ओ एकेडमी के अलावा ये प्रोडक्ट है ओ एजुकेशन। और उस प्रोडक्ट में खास बात ये होगी, बच्चों की तरबियत पर जोर दिया जाएगा, उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी कि उन्होंने कैसे बिहेव करना है सोसाइटी में, कैसे अपने पेरेंट्स के साथ, बड़ों के साथ बिहेव करना है, क्या चीज उनको नहीं करनी चाहिए। आई थिंक इस चीज पर बहुत कम लोग तवज्जो देते हैं। लोग स्कूल में डाल देते हैं, लेकिन घरों में भी इस चीज पर तवज्जो नहीं दी जाती। तो ये एक आदमी हमारे फायदे के लिए बात सोच रहा है, आई थिंक वंडरफुल, उनको सलूट है कि वो एक ऐसा सोचते हैं। और अभी हम ये करेंगे कि वन बाय वन हम तमाम, हमारे साथ कुछ और भी बैकएंड पे ऑडियंस है, जो हमें गेस्ट हैं जो पूरा शो वॉच कर रहे थे, उनसे भी हम इस शो के बारे में रिव्यू लेंगे। लेकिन वन बाय वन मैं स्टार्ट करता हूँ रेहान जी से। रेहान जी, आप बताएं, आज आप फर्स्ट टाइम हमारे शो में हैं, कैसा लगा और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सर थैंक यू वेरी मच मुझे फिर से बुलाने के लिए। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इस शो में नया हूँ, लेकिन मुझे मतलब मुझे लगता है कि मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस है मतलब ऐसे करने का, क्योंकि मैंने आपसे मतलब व्हाट्सएप कॉलिंग पर बात भी की थी इसके बारे में। तो मैं मतलब थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत रात जब हो जाती है, हम एक वेबिनार करते हैं, इसलिए मतलब 2-3 वेबिनार एक दिन मतलब अटेंड करना भी मुश्किल होता है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा आज जितना मुझे मतलब
अच्छा लगा और मुझे इतना हैप्पीनेस लग रहा है कि मतलब हर दिन मैं आऊँ यहाँ पर, हर दिन होता तो हर दिन आऊँ। मोस्ट तो वेलकम बहुत एनी अच्छा लग टाइम। रहा है सर। और यस, जी, यस सर। मोस्ट वेलकम तो एनी बहुत टाइम। अच्छा लगा आज की जो हमारी 3 लैंग्वेज शो है, लैंग्वेज बैरियर को हमें खत्म करना है और हमें ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ऐसी ह्यूमैनिटी क्रिएट करना है, ऐसी ह्यूमैनिटी बनाना है कि वहाँ से हम ना किसी को किसी की मजहब, किसी की जात, किसी की पात से हम विचार करें। हम विचार करें तो एक अच्छे इंसान के हिसाब से, जैसे एज सर हिसाब करते हैं किसी इंसान को कि कौन कितना डायरेक्ट फाउंडर ज्वाइनिंग किए है, वो देखने की जरूरत नहीं है। अगर क्रिस जॉनसन सर की जैसे एक लीडर को वो ब्लेस की रिप्रेजेंटिंग करने के लिए उनको चुना जाता है, तो आप समझिए कि ऑन पैसिव कौन सी एक लेवल की प्लेटफॉर्म है। और एस मुफर सर हमारी प्यारे लीडर, प्यारे सीईओ और लवली सीईओ, जिनके जैसे सीईओ आज तक किसी भी कंपनी में नहीं आया है और ऐसा कुछ सोच किसी की दिमाग में, किसी की सोच में, किसी की माइंड में अभी तक नहीं आया है। और एक बात यहाँ पर मैं ऐड कर दूं कि आज जो हमारी इंडिया में सुबह वाली शो हुई थी, जूली मैम हमारे इंडिया में सुबह, लेकिन वहां पर रात था। तो वहां पर 90 सेकेंड का एक टाइमिंग पीरियड था सभी के लिए कि आप जिस भी भाषा पर हो, आप हमारी एसर और हमारे टेक को आप थैंक यू कहो। तो वहां पर मैं देख रहा था कि बंगाली भाषा में, हिंदी में, भोजपुरी में, मराठी में, हरियाणवी में, बहुत सारी इंग्लिश में, बहुत सारी भाषा में एस सर को थैंक यू किया गया था और टेक टीम को थैंक यू किया गया था। एक इंसान ने, एक फाउंडर ने वहां पर बंगाली में कहा कि धन्यवाद एस सर, किंतु एज सर उस भाषा को नहीं समझ रहे थे। थैंक यू एस मुफर सर, तब भी एज सर वहां बोल रहे थे कि थैंक यू वेरी मच। एक एक इंसान ने वहां पर, एक फाउंडर ने वहां पर उनकी कार दिखाया था। वहां पर दिख रहा था कि ओ ब्लेस की स्टिकर लगा हुआ है, वहां पर ऑन पैसिव के स्टिकर्स और भी प्रोडक्ट्स की स्टिकर वहां पर कार पर लगा हुआ था। लेकिन एज सर देखकर, उनकी हिंदी लैंग्वेज तो नहीं समझ रहे थे, लेकिन एज सर बोल रहे थे दिस इज अ वंडरफुल सिनेरियो, दिस इज ए माइंड ब्लोइंग सिनेरियो, ऐसे करके एज सर वहां पर रिएक्शन दे रहे थे। तो लैंग्वेज क्या है उसको हमें नहीं देखना है, लेकिन उस लैंग्वेज से हमारी जो सोच है, जो विचार है, वो क्या निकल कर आती है, इसको हमें देखना है। तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। और आपकी इस 3 लैंग्वेज वाले शो बहुत ही जबरदस्त चल रहा है। मैं तो हर टाइम वॉच करता हूँ आपकी जो गेस्ट आता है, जैसे हमारे हर एलसी मेंबर के साथ ये हो चुका है। और हमें बहुत तब अच्छा लगता है जब आप नीरज डलवी सर और गुस्विंदर सर फ्रेंडली टॉक करते हो, तो मैं उनके लिए बेताब रहता हूँ, मतलब किस दिन आएगा उस शो। और मैं, मेरी चैनल है ऑन पैसिव सक्सेस, उस पर भी अपलोड कर देता हूँ उस वीडियो को फिर से मतलब देखने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ पर होस्ट बनाने के लिए, और सभी पार्टिसिपेंट का मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल आप जो फ्रेंडली टॉक शो है बहुत लोग पसंद करते हैं, क्योंकि हमारी कैजुअल टॉक होती है, कोई प्लान नहीं होता और हम शो करते हैं। लास्ट टाइम आपको पता मुंबई में इवेंट था, इस वजह से हम नहीं कर सके क्योंकि संडे को इवेंट था। तो जी थैंक यू वेरी मच आपका, आपके जज्बात का। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंसानियत का, ह्यूमैनिटी का कोई मजहब नहीं होता और सब इसको मानते हैं। जी संपा जी, आप, संपा सरकार भी फर्स्ट टाइम हमारे शो में आई और बड़ा सरप्राइज था मेरे लिए, और आपका शुक्रिया। आपका तो आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? थैंक यू वसीम जी, बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं तो और भी आना चाहूंगी मोस्ट अगर वेलकम, आप चाहे तो, मोस्ट वेलकम, क्योंकि मोस्ट वेलकम। मुझे ऐसा वेबिनार बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे लैंग्वेज, क्योंकि हमारे वर्ल्ड एक होने वाले हैं। हम पूरी दुनिया एक ही छत के नीचे, एक ही इधर, यहाँ कोई लैंग्वेज का बैरिकेड नहीं, कोई किसी चीज का कोई बैरिकेड नहीं, तो हम सब ऑन पॉसिबिलिटी नहीं। तो मुझे अच्छा लगता है, मैं बहुत सारे वेबिनार में मैं जाती हूँ, मुझे कोई भेदभाव मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं मानती भी नहीं हूँ, कोई बोले तो भी नहीं मानती हूँ। मुझे बहुत
लेकिन आपका वेबिनार बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इतना अच्छा प्लेटफॉर्म सच में जरूरी है हमें, क्योंकि ऑनपोसिव सबके लिए, कोई अकेले के लिए नहीं है। ऑनपोसिव सबके लिए सोचते हैं। ऑनपोसिव जो दुनिया में ला रहे तो सबके लिए ला रहा है, किसी अकेले नहीं। जो अगर दूसरे कंपनी की तरह हमारे मिस्टर ऐश भी ऐसे सोचते जो नहीं, हम एक एक प्रोडक्ट बना के हम छोड़ेंगे मार्केट में, तो ऐसे तो उन्होंने नहीं सोचा ना, उन्होंने सबको साथ लेके चल रहे। तो मैंने ऐसे सुना है जो तो एक आदमी के पीछे लोग बहुत सारे लोग चले तो वो एक देश जीत सकते, लेकिन एक आदमी के साथ बहुत सारे लोग खड़े होकर साथ में चले तो पूरा दुनिया जीत सकते। तो मिस्टर एस का विजन तो वही है ना, पूरा दुनिया जीतना। तो हमें उनका साथ देना चाहिए ऐसे भेदभाव बोल के, मुझे तो ऐसा ही लगता है। और मैं ऑनपोसिव जैसे ऑनपोसिव ऐसे मेरा तो मुझे लगता है मेरा खून में समा गया है ऑनपोसिव, क्योंकि मैं जॉब करती हूँ रेलवे में, इंडियन रेलवे में, लेकिन और ड्यूटी में आने के बाद जितने सारा रात 12 बजे तक जितने सारा वेबिनार होते हैं, मैं हर किसी में अटेंड करने की कोशिश करती हूँ जरूर। 3-4 जो भी हो, 3-4-5 जो भी है करती हूँ, क्योंकि मुझे मैं तो बोलते हैं, सब बोलते हैं, वैसे भी सब बोलते हैं कि अनपसित के पगली, ऐसे पागल पागल ऐसे कुछ बोलते हैं, तो मुझे उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे अनपसित के पागल है, हम हैं, वो हम जानते हैं, क्योंकि क्यों नहीं होना है कि ऐसे तो दुनिया में पहली बार आए हैं ऐसा, क्योंकि ऐसा सोचने वाले लोग दुनिया में एक ही है, मिस्टर एश, और कोई नहीं है दुनिया में। अभी तक किसी ने सोचा जिन्हें मैं खा जाऊं और दूसरे को ना दूं, ऐसा किसी ने नहीं सोचा। लेकिन मिस्टर एश सोचा कि ठीक है हम खाएंगे, लेकिन सबको साथ लेके। तो वो क्या बनाना चाहते हैं, ऑनपोसिव जैसे बोलते हैं ना, ऑनपोसिव मेकिंग कम्युनिटी ऑफ हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिविजुअल्स। तो वो ऑनपोसिव बनाना चाहते हैं। तो ऑनपोसिव ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे सामने लेके आए, हम उसमें क्यों नहीं शामिल है, पूरा जी जान लगा के देंगे बस। ऑनपोसिव तो है, हमारा है, और पूरा ऑनपोसिव है, हमारा फैमिली है। बिल्कुल बिल्कुल। सबके लिए गुड लक, थैंक यू वेरी मच वसीम जी। जी थैंक यू वेरी मच। और संपा जी, और आपने अभी बात की कि लोग मुझे ऑन पैसिव पगली कहते हैं, ये सिर्फ आपको नहीं कहते, लेकिन उन्हें ये नहीं पता ये वो लोग हैं जो ऑन पैसिव के विजन को समझ चुके हैं, क्योंकि ये चीजें पहले हुई नहीं, पहले सिर्फ बिजनेस होते रहे हैं, तो लोग उसी के साथ रिलेट करते हैं। लेकिन मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का होता है, ये वो लोग कहते हैं जो स्टडी बिल्कुल नहीं करते, ऑन पैसिव को सिर्फ अंदाजों पे बात करते हैं। तो लेकिन ये बाद में जब रियलाइज करेंगे तो पछताएंगे उन्होंने कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। तो और ऐश मुफारे का जो विजन है वो बिल्कुल ऐसा है कि पॉजिटिव वाइब्स है उनमें, उनका विजन बिल्कुल इंसानियत पर है, और इंसानियत की बात करते हैं, ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, म्यूचुअल बेनिफिट की बात करते हैं। और आई थिंक इससे पहले किसी सीईओ ने ऐसे इस चीज के बारे में नहीं सोचा और ना कोई ऐसी बात की। थैंक यू वेरी मच आपका, आप मोस्ट वेलकम, आप हमारे हर वेबिनार में आए, हर शो में आए और हमारे शो को 4 चांद लगाए। थैंक यू वेरी मच। कुंदन जी नेक्स्ट आप बात कीजिए थोड़ी सी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी दोबारा आमंत्रित करने के लिए इस मंच पे। और मैं तो उन खुशनसीब में से हूँ जो इस 3 लैंग्वेज का स्टार्टिंग में मैं पहली बार स्टार्ट हुआ और उसी समय मैं आया, और उस समय मैं गेस्ट के रूप में था। और कहा जाता है कि हर कोई चांद पर जाएगा, लेकिन पहला कदम जो रखता है उसका ज्यादा अहमियत होता है। इन इतिहास के पहले पन्ने में, 3 लैंग्वेज के पहले पन्ने में मेरा नाम है, तो ये इतनी बड़ी सौभाग्य हमें मिला है, तो इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकता है। और दूसरी खुशी की हम आज भी मौका मिला, और एक बार भी मैं और इन किया था, लेकिन फिर मैं वापस चला गया था कुछ कारणवश। तो लेकिन आज मैं
बरसते होस्ट बनकर आया, तो ये और खुशी है, विशेष खुशी। और हमारे उस दिन का होस्ट हमारे राजीव पांडे सर जी थे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भोजपुरी के लिए बार बार मौका मिल जाता है। आज विश्वास सर जी का प्रॉब्लम हो गया तो मुझे मौका मिला। तो कहा जाता है कि एक कहावत है कि खाने वाले को दाने दाने पे लिखा हुआ रहता है नाम, वैसे ही कहीं कहीं मौका जो होता है हमें हाथ से मिल जाती है सौभाग्य से। और सबसे बड़ी बात मैं ये जरूर बताना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि देखिए, पानी का कोई कलर नहीं होता है, जिस बाल्टी में रखते हैं उस कलर का हो जाता है, लेकिन पानी का क्वालिटी चेंज नहीं होता। यानी यहाँ हम सब रंग बिरंगे हैं, कोई कुछ धर्म के है, कुछ धर्म के, लेकिन हमारी सोच वही है। जो पानी का एक ही क्वालिटी होती है, क्वालिटी एक ही है, हमें लोगों को कल्याण करना और सबके हित में काम करना, बिल्कुल। और इसमें मैं काम कर भी रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कंपनी लॉन्च होगी तब मैं स्टार्ट, जानते ही हैं पिछले बार मैं बताया ही था कि मरी हुई नदी को जीवित करने पर पूरा मिशन चल रहा है। फिर एक बहुत बड़े मेडिकल हॉस्पिटल की तैयारी चल रही है जो बहुत बड़ा हो, माने भारत में उसका स्थान नंबर 1 नहीं तो दूसरा जरूर आ जाए, इतनी बड़ी चीज मैं करने जा रहा हूँ। उस पर बहुत बड़ा बातचीत भी हो रही है, डॉक्टरों के साथ भी बातचीत हो रही है, और उस मिशन में अब स्टार्टिंग कर दिया हूँ। और नदी वाले मिशन ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं, बहुत आगे, और उस पर काम भी चल रहा है। तो मैं लग चुका हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो तो निश्चित है, तो फिर मैं क्यों पीछे हूँ। क्योंकि मेरा भी प्लानिंग, जब हमारे एक ऐस सर हमारी ऐसी सोच दे दी है कि एक ऐस सर अकेले होकर पूरे 196 कंट्री में इतने बड़े लोगों को ला सकते हैं, तो हम सब अगर 50-100 मिल जाए तो कितना कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी उनकी देन है, और उनकी ये सोच के कारण ही हम सब बहुत कुछ कर पा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा लगा आपका ये भी, और बेहतर से बेहतर हर दिन होते जा रहा है। तो वो भट्टू वसीम सर जी, थैंक यू वेरी मच कुंदन जी। और ये मत सोचिए कि आप हमारे शो में आए थे चले गए। देखिए, फैमिली में जो हम रहते हैं तो कुछ फैमिली के लोग बाहर भी जाते हैं और वापस भी आते हैं, तो कभी ये नहीं फर्क रखते। तो ये हमारा अपना शो है, जब मर्जी आप जाएं और आए। तो यहाँ पर तो हमारे पास फैमिली मेंबर्स इतने हैं बात करने के लिए। तो आज मुझे नहीं पता था क्या होगा, लेकिन रेहान जी आए और संपा जी आई, और हमारा शो तैयार हो गया। और हर बार ऐसा ही होता है। तो कभी हमने, अक्सर ऐसा हुआ है कि हमने शो सोचा कुछ और होता है। तो हमारे साथ इस वक्त मेरी आज खुशकिस्मती है कि नाजमा राजपूत साहबा भी हमारे मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और जिन्होंने हमारा शो वॉच किया। लेकिन नेक्स्ट मैं जाता हूँ गौतम जी के पास। गौतम जी, आप 2 मिनट में ये डिस्क्राइब करें कि आपको शो कैसा लगा और कैसी फीलिंग है। वाशिम जी, मैं क्या कह के आपको शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि शुक्रिया अदा करके आपको छोटा नहीं करना चाहता हूं। क्योंकि जैसे कि याश सर की सोच है, उन्होंने क्या सोचा था और क्या हो गया, तो आपने भी क्या सोचा है और क्या कर गुजर रहे। तो ये सबसे बड़ी चीज है, ये आपने कैसे आपके माइंड में आए, ये मैं सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ कि 3 लैंग्वेज वाला को एक कर करके ने वो करना। जैसे कि उन्होंने पूरे कंट्री को एक कर रहे हैं कि पूरे आदमी का एक पहचान होगा कि ये फाउंडर वन पैसिव है। क्योंकि ऐसे की ऐसे सोच जो हर लोगों के बीच में कब पैदा होता है, जब वो कोई किसी मिशन और विजन से जुड़ जाता है। तो ऐसे हम भी ऐसे नहीं थे। जब मैंने फाउंडरशिप लिया था तब सोचा था मैं गिन गिन के 2-4 आदमी को दूंगा जब जिसको जरूरत है। पर मैंने जब इसकी अहमियत समझने लग गया, अरे ये तो जितना बांटेंगे उतना ज्यादा हमारे ज्यादा फायदा होगा। तो फिर मैं उस दिन से लेकर आज तक, मतलब अंधे की तरह, जैसे उन्होंने बोला पागल, तो पागल तो हम हैं ही, पर ये 2 तरह की पागल होता है जिनको मेडिसिन की जरूरत होता है, और एक तरह की पागल होता है जो जुनून की पागलामी करते, किसी चीज को हद पाने के लिए, किसी चीज को पार करने के लिए पागलामी करते। जैसे न्यूटन को भी, आइजैक न्यूटन को भी लोग पागल कहते थे, पर वो दुनिया को कुछ दे के गए। तो ऐसे हम ऐसे पागल है जो हम दुनिया को कुछ देना चाहते हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपके ये जो सोच, इस सोच को मैं सैल्यूट करता हूं। मैं वीडियो में नहीं आ पाए, नहीं तो मैं स्टैंड अप सैल्यूट करता मैं आपको। तो थैंक यू सर, आपने बिल्कुल, आप जो है ना बिल्कुल पाकिस्तान की हीरो है। तो आप बिल्कुल आप उस हिसाब से काम करते जाइए, तो दुनिया में आपको भी लोग देखेंगे कि ऐसे सोच लेके कोई व्यक्ति भी पैदा हो सकते। तो ऐसे सोच विचार हमारे बीच में भी हो, हम भी ऐसे तरीके की नया नया काम करते रहे, एक अजूबा गजूबा करते रहे। यही हमारा मिशन विजन है, यही हमारे अरसर का मिशन विजन भी है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच गौतम जी। और आपका शुक्रिया कि आप हमारे शो में आए। और बिल्कुल, जब ये 3 लैंग्वेज वाला जब मैंने शो स्टार्ट किया था, उस वक्त बहुत से लोगों ने मुखालफत की थी
क्योंकि वो YouTube के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे कि इसमें व्यू नहीं आएंगे, लेकिन मैं किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा था, यूनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा था। तो लेकिन ये था कि इसका रिस्पॉन्स मुझे अच्छा मिला। अगर ना भी मिलता तो मेरा ये मकसद ये था कि नॉर्मली क्या होता है कि मराठी लैंग्वेज में लोग आ रहे होते हैं, हिंदी में नहीं आ सकते, इंग्लिश लैंग्वेज उसमें नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पर मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में लोग बात कर रहे हैं, हालांकि अपनी अपनी जुबान में बात कर रहे हैं, लेकिन ये कि हम उनकी फीलिंग भी समझ रहे हैं, कुछ बातें समझ भी पाते हैं और हम उससे कनेक्ट भी कर पाते हैं ऑन पैसिव से। तो ये चीज़ है। तो बाकी है कि हालांकि मेरा एक यूट्यूब चैनल इतना बड़ा नहीं है, ऑन पैसिव पाकिस्तान के नाम से यूट्यूब चैनल है जिस पर मैं ये वीडियो अपलोड करता हूँ, और वहाँ पर मैंने इंटरव्यूज लिए यही सोच के साथ कि मेरी एक लाइब्रेरी बन जाएगी ऑन पैसिव लॉन्च होने के बाद। ये लोग होंगे जो हीरो थे, तो बल्कि आप लोगों के भी इंटरव्यू का सिलसिला मैंने डिस्कनेक्ट किया हुआ था कुछ वजह से, क्योंकि मैं 2 शो कर रहा हूँ, एक 3 लैंग्वेजेस विद वसीम और ऑन पैसिव फ्रेंडली टॉक शो नीरज जी और कुशमिंदर जी के साथ। तो मेरी खुशकिस्मती होगी अगर आप लोगों के मैं इंटरव्यू भी ले सकूं एक अलहदा, तो इंशाल्लाह वो भी होगा। थैंक यू वेरी मच आपका। और निर्मल जी आप बताइए, आपको आज कैसा शो लगा? निर्मल कुमार मिस्टर। थैंक यू सो वेरी मच सर। मेरा तो सोच के बाहर था, तो आज मुझे एक चीज कंफर्म हो गया। ये है तो पुराना बात, लेकिन आज एकदम प्रैक्टिकल में कंफर्म हो गया है। लोग कहते हैं कि बच्चों को जो बोलो वो बच्चा करता नहीं है, लेकिन आप जो करो वो बच्चा जो भी करता है। तो यश सर वो करता है, हम लोग वही सीखने की कोशिश किया है। यश सर के अपन जो भी कुछ उम्मीद करते हैं वो नहीं देता है, लेकिन हट के देता है जो अपन सोचते नहीं है। तो आप भी सेम, ये जो वेबिनार ये नया स्टार्ट हुआ है, अभी तक 4 साल के अंदर ऐसे वेबिनार किसी ने किया नहीं है, तो उसका दावेदार आप है, उसका शुक्रिया आपको ही मिलता है। तो हम भी चाहते हैं कि ये वेबिनार चलते रहे और हम लोग यहाँ हर बार पार्टिसिपेंट रहे। मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लगा कि 31 अक्टूबर 2020 से आज तक ऐसा वेबिनार तो मुझे मिला नहीं है, 3 लैंग्वेज के वेबिनार। मुझे बहुत ही प्राउड फील महसूस हो रहा है। थैंक यू सो वेरी मच सर, आपको असंख्य धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और ये वेबिनार, ये शो आप लोगों की वजह से है, और आप लोग हर शो में आ सकते हैं। देखें, अब जब आप बैक एंड पे हैं तो तब भी ये आप ही का शो है, जब फ्रंट पे आए तब भी आपका है, क्योंकि ये वो लाइक फैमिली, हमने ये शो चलाना मिलकर। तो इसका मकसद ये है कि मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के लोग एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठे हों। तो मुझे जैसे एक भाई साहब आए थे, मराठी के थे, वो कहते हैं कि हमने मराठी का पहले मैं शो किया था, फिर बाद में एक टीम चैंपियन में एक दफ़ा किया, तो अब मैं कर रहा हूँ, तो क्योंकि मुझे मौका नहीं मिला। तो यहाँ पे मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में लोग बैठे हैं, तो मुझे उनसे बात करने का मौका नहीं मिला कभी। तो ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर, जैसे यहाँ पर थेरी ओचो जो है फ्रांस के, वो आ चुके हैं, एंडी बर्ग्स आ चुके हैं यूके से यहाँ पर, और वेरोना विलिस ब्राउन है, वो जमाइका की हैं, और हवा बेकुम लेडी हैं, आपको पता है डिफरेंट लैंग्वेजेस, वो हिंदी भी बोलती हैं, वो आ चुकी हैं। तो बहुत सारे ऐसे गेस्ट आ चुके हैं जो कि अमेजिंग गेस्ट हैं। और इसमें ये नहीं है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज इज लैंग्वेज, चाहे वो लोकल लैंग्वेज हो चाहे वो इंटरनेशनल लैंग्वेज हो, हमने तमाम को मौका दिया है इस में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे खुशी होगी अगर आइंदा भी आप शो में ज्वाइन करें। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, 3 लैंग्वेजेस विद वसीम। अगर आप उस ग्रुप में नहीं हैं तो आपको उसमें शामिल कर लिया जाएगा। कुंदन जी, संपा जी, आप हैं उस ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ पे हम अपडेट देते हैं, इस शो के बारे में लिंक आता है, तो आपको ये प्रोवाइड कर दीजिएगा, आप कांटेक्ट कर लीजिए जी। नेक्स्ट में जाऊंगा अनूप प्रसाद जी के। अनूप जी, कैसा लगा आपको? जी जी, ग्रेट 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 सर, बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले मैं सभी पैनलिस्ट को मैं हार्दिक नमस्कार करता हूं, और हमारे शेरे दिल जो इतने बड़े कम्युनिटी तैयार कर दिए, उनको एस मुफर सर जी को भी मैं नमस्कार करता हूं। बहुत अच्छा लगा। हम ये आज पहली बार कुंदन सर जी के माध्यम से आपके प्लेटफॉर्म पर ऐड हुए हैं, और हम प्रयास करेंगे कि बराबर आपके पैनल में आ जाए। बहुत अच्छा लगा। कहाँ से शुरू करके कहाँ अंत करूं पता नहीं चल रहा है, शुरू से शुरू करके अंत करूं
कि अंत से शुरू करके शुरू में करूं सर, पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि इतना ग्रेट है, इतना बढ़िया लगा आज थोड़ी सी समय में। आज तक बहुत सारे वेबिनार हमने अटेंड किया, लेकिन इतना बढ़िया अभी आज जो लगा, बहुत अच्छा लगा। आप हमारे अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, हम नंबर भी अभी बोल दे सकते हैं, 9973। अनूप जी, इसमें मैंने चैट में अपना नंबर लिख दिया, आप लोग नोट और मैं ऐड कर दूंगा सर, मैं उसका एडमिन हूँ ना। जी ठीक है, आप अच्छा ऐड ठीक है, ठीक है सर, ठीक है हो सर। तो हम और भी कहना चाहते हैं, हमारे जिस प्रकार से दूध में पानी मिला देते हैं तो पानी का अस्तित्व खत्म हो जाता है, दूध के आकार ले लेता है, उसी प्रकार से सही व्यक्ति के साथ में रहें अगर, तो हम भी सही हो जाएंगे। हमारे ग्रेट सीईओ सर भी इसी तरह के हैं, एस मुफरे सर, अच्छे आदमी के साथ में हम लोग आए हैं। हम लोग निश्चित है कि अच्छे दिशा में हैं और अच्छा करेंगे। और हम कल भी बोलना चाह रहे थे लेकिन नहीं बोले, कल आपके प्लेटफॉर्म में नहीं, लेकिन हम लोग भी एक चलाते हैं, उसमें बोलना चाह रहे थे। हम बस एक हिंदी फिल्म गाना है, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। आज सभी फाउंडर की यही स्थिति हो गई है ऑन पैसिव के बारे में, इसके बिना चैन ही नहीं है, चाहे रात हो कि दिन हो, जब प्रोग्राम हो तब होता है। तो सर जी, वसीम सर जी, आप हमारे पैनल में जरूर रखें, हम हमेशा आने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आप उसमें ग्रुप में ऐड कर दीजिए कुंदन जी इन सबको, और संपा जी को भी, सबको जो ग्रुप में है नहीं है तो मेरा बिल्कुल मैं सबको ऐड कर दूंगा। मैंने अपना नंबर चैट में लिख दिया, आप वहां से मेरा नंबर भी नोट कर सकते हैं। और मैं इनवाइट करना चाहूंगा कुछ हमारे और भी गेस्ट यहाँ पर हैं, और मैं यहाँ पर हमारे साथ हैं डॉक्टर इश्तियाक साहब, जो कराची पाकिस्तान से हैं। तो डॉक्टर साहब, आपको कैसा शो लगा? आप कुछ 2 लफ्ज अगर आप कहें तो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी सर, बहुत अच्छा शो लगा, बहुत तमाम लोगों का पार्टिसिपेंट जो किया, सबने बहुत अच्छा किया, और बस सबको मैं मुबारकबाद ही कहूँगा। आपको, आपकी कोशिश को, आपने बड़ा अच्छा एक चैलेंज लिया है ये, और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा है, अच्छा रहा, तो बहुत अच्छा शो लगा। थैंक यू सब। थैंक यू वेरी मच। जियाउर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जिया भाई, जी जियाउर रहमान साहब का ताल्लुक कश्मीर से है, कश्मीर पाकिस्तान। तो जिया साहब, आप बात करना चाहेंगे? जी उनकी वॉइस शायद सुनाई नहीं दे रही। चलो नेक्स्ट हमारे पास हैं डॉक्टर विकास सी। डॉक्टर विकास, डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको शो कैसा लगा? आपने जितना भी देखा, आप अगर अनम्यूट करेंगे प्लीज। चलो, डॉक्टर विकास मेरा बड़े भैया है, अब देखिए वो आए हैं, शायद उनको कुंदन जी इनवाइट किया होगा। चलें ठीक है, ठीक है। तो 2 लफ्ज कह लें, मेरी खुशकिस्मती होगी अगर वो बात करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से हमारा शो तो चलता रहेगा। जिया साहब, आप 2 मिनट, दो सेंटेंस कहेंगे आप इस शो के बारे में? जिया साहब, आपने पूरा शो वॉच किया। हमारे यहाँ कुछ फाउंडर हैं जो शाय हैं, आई थिंक उनको बोलना चाहिए, बात करना चाहिए। चलें ठीक है, तो हम इस शो का इख्तिताम करते हैं, और थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का। नेक्स्ट भी किसी अच्छे शो के साथ, अच्छी मजीद नई लैंग्वेजेस के साथ हम हाजिर होंगे। तो राजीव सर आए हैं सर, उनसे फीडबैक ले लिया जाए। राजीव पांडे सर हैं सर। राजीव साहब हैं? हाँ जी, राजीव साहब। हाँ, मैंने देखा नहीं अभी। हाँ। राजीव साहब, बहुत बहुत धन्यवाद वसीम सर जी। और विभिन्न भाषा में ये प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है, वेबिनार जो अरेंज किए हैं आपने, इसके लिए हमारे दिल से आपको शुक्रिया करते हैं। और आज का जो भी पार्टिसिपेंट थे, बहुत ही अच्छे थे, जिसमें अनूप सर थे, गौतम विश्वास सर थे, कुंदन सर हैं, संपस जी हैं और रेहान जी हैं। सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज बहुत ही अच्छा तरह से इसको ऑर्गेनाइज किया, इसको मेंटेन किया है। तो मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ एक गाना के रूप में। सहज किनारा
मिल जाएगा, तुझको सहारा मिल जाएगा। ऑन पैसिव में आके तू देख एक बार, उदासी मन काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को डरे। ऑन पैसिव में आके तो देख एक बार, उदासी मन काहे को डरे। धन्यवाद वसीम सर और सभी को धन्यवाद। आपकी तो बहुत खूबसूरत आवाज है। मैं तो कह रहा हूँ अपने हर शो में आपका एक गाना भी रख लेते हैं। बिल्कुल धन्यवाद सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल एकदम गाना बहुत अच्छा गाते बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी हमारे साथ अली असगर साहब हैं जो ड्यूरिंग शो अपना माइक बार बार ऑन कर रहे थे। मैं चाहता हूँ अब वो माइक ऑन करें। और हेलो अली असगर साहब, आप कुछ बात करेंगे? हेलो, चलें ठीक है। उनकी बात पहले हो चुकी है इसलिए चलें ठीक है। चलो हम शो का इख्तिताम अपना उस अल्फाज से करते हैं जो हम हर वेबिनार में करते हैं। वी आर सो इन इट टू विन इट। We We are are so so in in it it to to win it. थैंक यू वेरी हम मच। हम घर से गर्व कहते से हैं कि हम कहते हैं, शुभ हम रात्रि। कोशिश करते हैं। Good We are night. so बिल्कुल थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।